Good morning, children. We have already started exercise 2.5. Now we will further move the rest chapter. We have discussed 8 identities in the last video, and the ninth one, although it is not written in your book, but I am writing it for you because this is also equally important. And the same identity is in your exercise 2.5 also. So let's write it and let's memorize it. X cube plus y cube is equal to x plus y bracketed x square minus xy plus y square, and x cube minus y cube is equal to x minus y bracketed x square plus xy plus y square. So see, if here it is plus, we'll write x plus y, but xy becomes minus. If here it is minus, we'll write x minus y, but here xy becomes plus. So these are the basic 9 identities we need to know in order to solve exercise 2.5. Continuing to the next question, we have discussed question number 1. See here, question number 2. Evaluate the following product without multiplying directly. 103 into 107. So expand it. 100 plus 3 into 100 plus 7. Right. Now solve it. This becomes 100 square. Use the fourth one identity. 100 square plus 3 plus 7 times 100 into plus 3 into 7. So this becomes 10,000 plus 10 into 100, 1,000 plus 21. So we get the answer as 11,021. Rest question you will do on your own. Number 3rd, you see, I am telling you. This was 2 ka 1. Third question is factorize the following using appropriate identities. So let's see what it is. First question is 9x square plus 6xy plus y square. See, 9x square can be written as 3x ka whole square. Alright. 6xy can be written as 2 into 3x into y plus y का whole square. So if it is a plus b का whole square क्या होता था? a square plus 2ab plus b square. See here, a square plus 2 into a into b plus b square. So what is a here? A is 3x. What is b here? b is y. So a plus b का whole square. So this is the identity. What identity we have used? We have used the identity a plus b's whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. You can write also the identity you have used. Okay, so next one is second question you do on your own. Third I am writing. 3 ka third I am telling you. 3 ka third. Alright, it is x square minus y square by 100. X square minus y square by 100. So see here, using the identity a square minus b square, we get a minus b into a plus b. Further, if you solve this, you will get x minus y by 10 into x plus y by 10. All such kind of question was there in standard 8. Remember? The very next question, on the question number 4 is expand each of the following using suitable identities. So number 1 is x plus 2y plus 4z times square. So a plus b plus c square will write. Use the identity, using identity. Which one? A plus b plus c whole square will give you a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Remember, we'll use the same thing. So see here. So this was our question, isn't it? So this becomes like x square plus 2y whole square plus 4z whole square plus 2 into x into 2y plus 2 into 2y into
4z प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z इंटू एक्स होगा 2 इंटू 4z into x. Further, if you will solve, you will get x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 4yz plus 8zx. So this is how the first one is expanded, isn't it? The next question will do. The next one is 4 का 2 मैं बता रही हूँ या 4 का 6 मैं बता रही हूँ, बाकी आप बना लेंगे. 4 का 6 है 1/4a minus 1/2b plus 1 whole square. See, here also same thing, same rule will be followed. This is equal to how much? 1/4a square plus, since it is minus, we'll write inside minus, 1/2 minus 1/2 b whole square plus 1 square plus 2 into 1/4a into 1 minus 1/2 b plus 2 into minus 1/2 times b into 1 plus 2 into minus, next one is 1/4a into 1. All right, so this becomes, we'll solve this. So further it is reduced as 1/16 times a square plus 1/4 times b square plus 1 minus 1/4 times ab minus b minus 1/2 times a. Then the next question I am doing it for you. Fifth one, you see what is there. फिफ्थ का 1 हम लोग करेंगे. See, the question is 4x square plus 9y square plus 16z square minus 12xy minus 24yz minus 16xy. So 4x square can be further written as 2x का whole square plus 3y का whole square प्लस 4z का होल स्क्वायर. ये जस्ट फाइंड कि ये किसकी स्क्वायर है, ठीक है. इसके बाद आप +2 को पहले लिख लीजिए, ठीक है. आप यहाँ माइनस देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे आपको देखना है कि कितने क्वांटिटी जो है आपके माइनस में लिखे हुए हैं, तो आप उसी हिसाब से साइन लगाएंगे. यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्लस होना चाहिए. यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ माइनस है बट यहाँ प्लस है. यहाँ प्लस कब आएगा? जब ये क्वांटिटी एक्स वाली वेरिएबल भी प्लस हो माइनस होगी या वाई वाली माइनस, दोनों या तो माइनस होगी या दोनों प्लस होंगी, राइट, तभी होगा, इजंट इट. तो दोनों को प्लस अगर लेते हैं तो रेस्ट आपका जो बचता है जेड वाला क्वांटिटी वो माइनस में होना चाहिए, यानी कि -4z अगर हम लोग ले लें तो हमारा इसी तरह से टूटेगा. सो दिस बिकम -4 का होल z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, इजंट इट. और नेक्स्ट होगा 2 इंटू 3y इंटू -4z और लास्ट में 2 इंटू -4z इंटू 2x. अब आप देखिए माइनस प्लस ये क्वांटिटी माइनस होगी. 2 इंटू 3 6 4 ज़ 24 YZ, तो -24 YZ है. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज सी 2 इंटू -4 दैट इज -8 -8 इंटू 2 दैट इज -16 ZX -16 ZX होना चाहिए. यहाँ ZX होना चाहिए, -16 क्योंकि XY है, YZ है. यहाँ ZX होना चाहिए. लेट मी राइट इट फॉर यू. -16 ZX क्वेश्चन में भी है, हाँ क्वेश्चन में भी है. सो -16 ZX, या इट इज़ फॉलोइंग. एंड लास्ट वन इज 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 XY यहाँ पे भी है, सही है, ठीक है. और इनकी स्क्वायर्स भी हो रही है. माइनस की स्क्वायर जब आप करोगे तो वो प्लस बन जाएगी. तो -4Z इंटू -4Z 16Z स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर. लाइक दिस यू हैव टू डू. नाउ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C.
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वैसे ही टूटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 4z की होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 टाइम्स एक्स वाई, ऑलराइट, प्लस 4√2 times yz, 4√2 times yz, and last one is your minus 8zx, minus 8zx, all right. So this become 2x square, तो इसको आप देखिए √2 का होल एक्स स्क्वायर में टूट रहा है, √2 का होल एक्स स्क्वायर प्लस y जो है डायरेक्ट अभी टूट रहा है, ये प्लस 8z आपका कैसे होगा, 2√2 की स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 2 की स्क्वायर 4 होगी, √2 की स्क्वायर 2 होगी, तो 4 2 8 हो जाएगा, है ना, तो ये इसकी स्क्वायर बन जानी है। अब आप देखिए यहाँ नेक्स्ट 3 टर्म्स में कौन सा माइनस है, एक्स वाई माइनस है, जेड एक्स माइनस है। ठीक है, इसका मतलब एक्स या वाई, इधर एक्स और वाई माइनस होना चाहिए और जेड और एक्स माइनस होना चाहिए, लेकिन वाई जेड आपका प्लस है, तो या तो वाई माइनस होगा जेड माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्वांटिटी मिलके प्लस हो जाएगा, या दोनों प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग माइनस ले लेते हैं, चलिए माइनस ले लेते हैं, माइनस वाई की होल स्क्वायर, और यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों को हमने माइनस ले लिया, तो अब आगे और क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू √2 टाइम्स एक्स, क्योंकि ये प्लस है, इंटू माइनस वाई, ये हमने माइनस ली हुई है, प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू माइनस 2√2 जेड। ठीक है, और लास्ट में होना चाहिए प्लस 2 इंटू माइनस 2√2 जेड इंटू √2 एक्स। ठीक है, अब आप इसको तोड़िए, देख लीजिए, √2 की स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर हो रही है, माइनस वाई की स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई ही होगी, हम नीचे लिखे हैं, माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगी, माइनस 2√2 की स्क्वायर इंटू जेड 8z स्क्वायर होगी, यहाँ पे है 2 इंटू √2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई, सो दिस बिकम 2√2 एक्स वाई विथ ए माइनस साइन, माइनस 2√2 एक्स वाई, इट इज़ ओके, 2 इंटू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2√2, दिस बिकम्स 4√2 वाई जेड, 4√2 वाई जेड है। नेक्स्ट इज 2 इंटू 2√2 इंटू √2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगी, तो माइनस 8zx, तो माइनस 8zx है, तो इट इज़ सेटिस्फाइंग कम्प्लीटली। सो वी विल राइट √2x माइनस वाई माइनस 2√2z इसकी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए विल बिकम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस बिकम्स माइनस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, सो आई हैव रिटन। तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंटली क्या करना है, वाइजली क्या करना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म्स निगेटिव है। निगेटिव होगा तो रिमेंबर 2 ही टर्म निगेटिव आएगा, तीनों निगेटिव नहीं आएगा। पहली बात, जो 2 टर्म निगेटिव है उसको आप होल्ड कीजिए, और जो 2 टर्म पॉजिटिव है ना उसको आप देखिए। तो आप यहाँ जैसे यहाँ पे हमने देखा कि yz जो है, yz वाला जो मेरा टर्म है जिसकी वेरिएबल yz है वो पॉजिटिव है, तो या तो y वाली क्वांटिटी माइनस होनी चाहिए और z वाली भी माइनस होनी चाहिए, या फिर y वाली क्वांटिटी प्लस होनी चाहिए और z वाली क्वांटिटी। देखिए इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इसकी होल स्क्वायर। तो इसको भी आप जब आप एक्सपैंड करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे, दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर प्लस वाई जेड है तो या तो दोनों क्वांटिटी मेरी प्लस होनी चाहिए, और अगर नहीं तो दोनों क्वांटिटी मेरी माइनस होनी चाहिए, या तो दोनों प्लस होगी वाई वाली और जेड वाली वेरिएबल वाली, या तो दोनों ही माइनस होगी वाई और जेड वाली। ठीक है, अगर दोनों माइनस हुई तो नेक्स्ट जो रेस्ट क्वांटिटी है वो प्लस होना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपस में प्लस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस।
और या अगर दोनों प्लस लिया है तो रेस्ट क्वांटिटी आपको माइनस लेना है, रेस्ट लेफ्ट ओवर जो वेरिएबल है एक्स उसको आपको माइनस लेना है, ताकि माइनस प्लस अगेन माइनस, माइनस प्लस अगेन एंड प्लस प्लस विल बी प्लस ओनली. This is the only game in this question. I hope you have no doubt regarding question number 5. Now next question is, if you have not understand, you can listen again and again. If you have any doubt, you can write in the comment box. I will answer to each and every query of yours. आपके जो भी questions होंगे मैं उसको answer ज़रूर करूँगी. Next है 6th वाला, write the following cubes in expanded form. So 6th वाला आप देखिए ज़रा, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड. 2x + 1 इसकी होल क्यूब. तो x + y की होल क्यूब चिल्ड्रन, रिमेंबर x क्यूब + y क्यूब + 3xy ब्रैकेटेड x + y. सेम थिंग्स वी आर गोइंग टू राइट. 2x की होल क्यूब + 1 की होल क्यूब प्लस 3 × 2x × 1 × ब्रैकेटेड 2x + 1. सो दिस बिकम्स 8x क्यूब plus 1, 8x cube plus 1 plus 3 × 2 that is 6 × x, 6x और ब्रैकेट में भी इसको रखते हैं 2x + 1. अब नेक्स्ट टाइम इसको तोड़ना है. सो दिस बिकम लाइक 8x क्यूब plus 1 plus 6 2 = 12 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 6x. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, और इजीली यू कैन डू. सपोज 6 का 4 मैं बता रही हूँ. देखिए x - 2/3 y की होल क्यू है. ठीक है, तो ये हो जानी है x क्यू माइनस 2/3 y की होल क्यू, x क्यू माइनस y क्यू माइनस 3 × x × 2/3y इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा x - 2/3 टाइम्स y. Now when you further solve it, x cube minus 8/27 times y cube minus 3 will be cancelled and you will get 2xy. ब्रैकेट में as it is लिख लीजिए x - 2/3 times y. Now further you will solve x cube minus 8/27 times y cube minus 2x square y minus minus plus and 2 to 4, 2 2 is 4/3 xy square. रेस्ट यू विल डू. 7 का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, सपोज 7 का 3rd बता रही हूँ. ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है चिल्ड्रन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज 2.5 हार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और 2.4 से भी आते हैं. तो 998 का होल क्यूब है. अब देखिए इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं. नियरेस्ट 100 क्या है इसका, नियरेस्ट 1000 ही है राइट. 1000 - 2 का होल क्यूब, तो x - y की होल क्यूब में टूट गया. तो दिस बिकम्स, ये क्वेश्चन आपने क्लास 8 में बनाया हुआ है. 99 97 का स्क्वायर इफ़ यू रिमेंबर, क्यूब भी बनाया हुआ है. तो इसकी क्यूब हो जाएगी -2 की क्यूब क्या हो जाएगी 8. ऑल राइट, एंड फर्दर -3 × 1000 × 2 ब्रैकेट में क्या रहेगा 1000 - 2 एंड यू विल गेट 2 3 4 5 6 zeros हो जाएंगे. -8 -3 2 = 6 3000 और ब्रैकेट में रहेगा 1000 - 2 एंड देन यू विल गेट 6 zeros होंगे. 1 2 3 4 5 6 -8 -1 2 3 4 5 6 minus plus you will get 12 1 2 3 zeros. यहाँ पे एक है कि क्यूब है ना, तो 3 × 3 × 3 9 zeros होने चाहिए. तो 6 हमने किया था, इसमें और 3 zeros मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, फर्दर आप इनको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा -60 1 2 3 60 lakh plus 12,000. So let's do it here.
-8 इजंट इट। तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ 6 1 2 3 4 5 and 6 ऑल राइट। 3 4 5 6 इन दोनों को हमने विथ अ माइनस साइन है और ये है आपका प्लस 12,000। सो दिस विल बी, अब इनको घटा लीजिए 6 देन 0 0 8 9 ऑल राइट 0 6 not 6 5 all right. This also becomes 9. We have taken, for this we have taken carry over, no? So 9, this become 9 minus 1, 9 minus 1, this become 8. So 5 9 8 8 0 0 6 with a minus sign, 5 9 8 8 0 0 6 with a minus sign. Now we'll find space and we'll do we'll further no, this is 6, this is 8. Further we will subtract it with this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 with minus 8 0 0 8 8 9 5. Let's subtract, you will get 2. Next is, because we have taken carry over 9, same 9 minus 8 1, again here will be 9 minus 8 1, 9 minus 0, then 9 minus 4, 9 minus 4 will be 5, and 9 minus 5, sorry, 9 minus 5 will be 4, and the last one is, the last one will be 9, and one more 0 is here, 9. So you have got the answer I am writing here. So the answer will be after solving 99,401,1,992. all right, 99 crore 40 lakh 11,992. This is your answer. Rest you will do of question number 7, 8. I am telling you. Factorize each of the following. See, 8 kind of question is very easy. X minus y की होल क्यूब, नहीं तो x plus y की होल क्यूब में ही टूटेगा. तो लेट्स डू फर्स्ट एंड फोर्थ. 8 का फर्स्ट और 8 का फोर्थ विल डू. रेस्ट 2 3 you will do and on your own. I'm writing it for you. 8a cube plus b cube, all right, plus 12a square b plus 6ab square. Now see, 8a cube is 2a की whole cube plus b की cube plus 3 into 2a into 3 into 2a into b, और ब्रैकेट में आनी चाहिए 2a की स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो 12 बन जाएगा, और प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी की स्क्वायर ले लो. सो दिस बिकम्स, फर्दर दिस विल रिड्यूस्ड एज 2a प्लस बी की होल क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर. यानी अगर एक्स वाई प्लस वाई के टर्म में देखा जाए क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही है ना. तो 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 2a की होल स्क्वायर बी प्लस 3 2a इंटू बी स्क्वायर. सो वी विल गेट 2a प्लस बी की होल क्यूब. नाउ फोर्थ वन आई एम डूइंग इट फॉर यू. तो फोर्थ वन लिख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है फोर्थ करें या फिफ्थ करें, फिफ्थ करते हैं. क्वेश्चन है 27 p क्यूब माइनस 1 बाई 216 माइनस 1 बाई 216, और फिर क्या है फर्दर माइनस 9/2 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p. तो 27 p क्यूब
दिख रहा है हम लोगों को क्लियरली 3p की होल क्यूब है। 216 6 की क्यूब होती है। अब क्यूब और स्क्वायर्स हर एक नंबर का मेमोराइज करेंगे। तो 1/6 का होल क्यूब, ठीक है, -3 into 3p into this should be minus, all right, so this, okay, let's write directly, -3 into 3p की होल स्क्वायर इंटू b होनी चाहिए। तो b क्या है आपकी 1/6 है, और प्लस 3 इंटू 3p एज इट इज़, और लास्ट में होगा 1/6 की होल स्क्वायर। सो वी गेट 3p minus 1/6 की होल क्यूब। दिस इज योर आंसर, ऑल राइट। 3p minus 1/6 की होल क्यूब। Which identity you have used, you write here to make it more clear. X minus y की whole cube is equal to x cube minus y cube minus 3x square y, and last one will be plus 3x y square. So this is how question number 8 you will do. Rest question I'm doing 9 question for you. All of you have remembered the 9th identity. Let's write it without looking into the question. X cube plus y cube was this is equal to x plus y. ऑल राइट, ब्रैकेट में क्या था मैंने बोला था याद रखने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरी क्या थी, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू, वी हैव टू वेरीफाई if it is true or not. Let's verify. 9 की 1 2, पहले 1 देखते हैं हम। सी फर्स्ट यू राइट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की होल क्यूब होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और आगे क्या होगा बोलो, प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आप एक तरफ रखिए और बाकी जो क्वांटिटी है उसको आप इधर ले जाएं। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और जो रेस्ट क्वांटिटी है वो क्या है, -3x स्क्वायर वाई और -3x वाई स्क्वायर। अब ये फर्दर कैसे सॉल्व होगा देखिए, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब है और इनमें क्या कॉमन आ रहा है, -3xy, वी नो इट इज़ कॉमन, और अंदर क्या है x प्लस वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई ये दोनों टर्म में x प्लस वाई दिख रहा है, तो इनको कॉमन निकालिए। अंदर क्या बचा, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच रहा है क्योंकि क्यूब था, एक तो हमने बाहर कॉमन निकाला तो स्क्वायर बचेगा, -3xy बचेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही x प्लस वाई है जो कि कॉमन में बाहर है। तो x प्लस वाई को एज इट इज़ विदाउट डिस्टर्बिंग लिख दीजिए और इनको एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और -3xy, ठीक है। और इनको फर्दर सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा x प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यही था ना, x इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्या है, सेम तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो आइडेंटिटी क्या है पहले लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब -3xy ब्रैकेटेड एक्स माइनस वाई, यही थी। ये क्वांटिटी को इधर ले आइए, तो ये सेकेंड नंबर में बना रहे हैं, तो ये क्वांटिटी आप इधर लिखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और बाकी क्वांटिटी को इधर ले जाइए तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई की होल क्यूब थी, और यहाँ हो जाएगी, ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा 3xy एक्स माइनस वाई। दोनों में दो टर्म है, टर्म 1 टर्म 2, दोनों में हमें दिख रहा है एक्स माइनस वाई है, कॉमन निकाल लीजिए तो एक्स माइनस वाई बाहर आ गया और अंदर बचता है एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर और प्लस 3xy। इनको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट एक्स माइनस वाई और अंदर में बचेगा एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। और फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर -2xy
और प्लस 3xy, तो ये हो जाएगा प्लस xy और प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़. सो वी गेट x माइनस वाई ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज डन. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे 10, क्यों मैंने बोला आइडेंटिटी याद रखना, क्योंकि 10th में हमारी आइडेंटिटी कैसे यूज़ होगी क्वेश्चन नंबर 10 में, वो हम लोग देखते हैं. 10 का 1 देखिए है 27y³ प्लस 125z³. ठीक है, तो a³ प्लस b³ के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3y प्लस 5z और ब्रैकेट में क्या होगी 3y की होल स्क्वायर माइनस xy था ना, या a b जो भी है, तो हो जाएगा माइनस 3y और इंटू 5z और प्लस 5z की होल स्क्वायर. लेट्स फर्दर सॉल्व. दिस बिकम्स 3y प्लस 5z और अंदर रहेगा 9y स्क्वायर और माइनस 3 5 15yz और प्लस 5 5 25z स्क्वायर. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, 10 का 2 भी देख लीजिए. 64m³ माइनस 343n³. ये आप देख रहे हैं कि 8m माइनस कि ये किसकी क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, इजंट इट. किसकी, 7 की, 7 की है और ये हो जाएगा n. अंदर में रहेगा 8m होल स्क्वायर प्लस 8m इंटू 7n और प्लस 7n की होल स्क्वायर. अब ये फर्दर हो जाएगा 8m माइनस 7n 64 है ना, तो यहाँ 4 होना चाहिए. परफेक्ट क्यूब में तोड़ना है ना, यहाँ भी 4 होगी, ये भी 4 होगी. ठीक है, तो यहाँ 4 होगी, तो ये हो जाएगा 16m और 4 7 28 mn और 7 स्क्वायर मतलब 49 n स्क्वायर m स्क्वायर. एक बार और लिख देती हूँ मैं क्लियर. 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28 mn प्लस 49n स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्या था कि 64 है तो वो 4 का परफेक्ट क्यूब है ना, तो मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक 8, तो इसको मैं ठीक कर दे रही हूँ. 4 है, यहाँ पे भी 4 होगा, यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4 और फर्दर दिस इज़ द ओनली वे. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ द आइडेंटिटी. x³ माइनस y³ मतलब हो गया x माइनस वाई और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर और अगर x³ प्लस y³ तो हो जाएगा x प्लस वाई और ब्रैकेट में रहेगा x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर. इसको लर्न बाय हार्ट. 11 क्वेश्चन देखिए. 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz. ठीक है, तो ये आपको इसको क्या करना है, आपको इसको फैक्टराइज करना है. ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, जस्ट सी. आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, रिमेंबर, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो देखिए किस तरह से सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं. ये लास्ट वन 8th वाली आइडेंटिटी थी, isn't it? And here we are using the same identity in order to solve. So this will become, using this, 3x plus y plus z in the bracket and 3x की होल स्क्वायर क्या होगी 9x स्क्वायर, y की स्क्वायर y स्क्वायर, z की स्क्वायर z स्क्वायर और माइनस
एक्स वाई यानी कि 3x इंटू वाई यानी -3xy माइनस वाई जेड और माइनस z इंटू 3x मतलब 3zx 3zx. सो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू दिस मच. तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ आपके लिए. नंबर 12 डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ. LHS में दी हुई है. LHS दी हुई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. ये है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX ब्रैकेट क्लोज. तो क्या करना है, आप इधर मल्टीप्लाई 2 कीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई. 2/2 कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. तो 2x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, वैसे ही तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिखेंगे, वाई स्क्वायर को भी 2 बार लिखेंगे, जेड स्क्वायर को भी 2 बार लिखेंगे. तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy पहले लिख लेते हैं और प्लस वाई स्क्वायर एक बार लिख लिए. ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर, लेट्स राइट वाई स्क्वायर माइनस 2yz को लिख लीजिए और प्लस जेड स्क्वायर लिख लीजिए. इनको ब्रैकेट में दिखाइए. प्लस जेड और एक्स को अब लेना है. प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर. अब देखिए सारा टर्म 2 होना चाहिए. 2xy 2zx 2yz तो है ही. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल गिव यू 2x स्क्वायर. वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल गिव यू 2y स्क्वायर. जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल गिव यू 2z square. So when you have multiplied 2/2 and you have multiplied 2 inside with each of the term, you will get 2x square 2y square 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx, and the same thing is written in this way. All right, so this become 1/2 x plus y plus z और ब्रैकेट के अंदर ये क्लियर दिख रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. हैंस प्रूव्ड और वेरीफाइड. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू वेरीफाई. विल राइट वेरीफाइड. ऑल राइट. अब देखिए जो 13 क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर भी आया था, दिस ईयर भी आया है क्लास 9 के फाइनल एग्जाम में. तो आप देखिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ठीक है, तो विल राइट चिल्ड्रन दिस इज 0, इट इज गिवन. स्टार्ट फ्रॉम द दैट आइडेंटिटी. व्हाट वाज दैट? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. और ये इसकी वैल्यू क्या होती थी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेटेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ और माइनस ZX. अब क्या है कि ये चीज़ तो 0 दी हुई है, तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0. आप लिख भी दीजिए एज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0. एंड दिस इम्प्लाइज फर्दर माइनस वाला चीज़ जब इक्वल टू के नेक्स्ट हैंड साइड जाएगा तो वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3xyz. हेंस this is how showed, hence verified, or you can write proved. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना इजी है.
आपको विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इफ यू नो द आइडेंटिटी विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब यू कैन इजीली सॉल्व सच क्वेश्चन. अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू क्या थी चिल्ड्रेन? इसकी वैल्यू 3xyz थी. कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है. तो हम लोग चेक करेंगे. ठीक है, सेम जो हमने अभी 13th क्वेश्चन में बनाया है उसी का इसमें उसी का कॉन्सेप्ट है. आप देखिए इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब में देखिए. तो अगर एक्स यानी 12 प्लस 5 प्लस हियर यू राइट हियर क्लियरली -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगी? हो जाएगी 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z. So this is so easy. Without cubing you have identified this will be the answer. So let's solve it. Therefore -12 की whole cube plus 7 cube plus 5 cube is equal to -12 into 3 will become 36 minus 36, and this is 7 5 35, and 35 into 36 when you will solve you will get it as I have solved -1260. All right, this will be your answer. Next question you see 28 की क्यू है, -15 की क्यू है और प्लस -13 की क्यू है. तो -15 -13 -28 plus 28 0. So this is equal to directly 3 into 28 into -15 into -13, and when you will multiply all these you will come to the result yes plus 16,380. This will be your answer. Last question, second last question. Give possible expression for the length and breadth of the following rectangle. पहला है अगर दी हुई है एरिया, फर्स्ट में देखिए एरिया दी हुई है 25. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. 25a² माइनस 35a प्लस 12. इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? फैक्टराइज कर लीजिए तो हो जाएगा 25a². ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसको मिड टर्म स्प्लिट से. तो a इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 12. 25 होगा 5 इंटू 5. 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3. और आप क्लियरली देख रहे हैं कि 20 5 4 जा 20 और 15 -20a -15a और प्लस 12, एंड दिस बिकम्स ये हो जाना है. इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 5a आ रहा है, निकाल लीजिए. अंदर क्या बच रहा है? 5 -5a -4, और यहाँ क्या बच रहा है? -3 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए. अंदर बचेगा 5a -4. सो 5a -4 को कॉमन निकालिए दोनों में से. अंदर क्या हो जाएगा? 5a -3. तो आप क्या लिखेंगे? ये आपका होना चाहिए लेंथ क्योंकि ये बड़ा है, और ये आपका होना चाहिए ब्रेड्थ क्योंकि ये छोटा है. ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ हो गया. सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाना है. वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यानी क्यूब दी हुई है, क्यूब और क्यूबाइड व्हाटएवर, क्यूबाइड दी हुई है. तो आप पहला वाला लिख लीजिए. मैं 16 का 1 बता रही हूँ. ये है 3x² माइनस 12x. क्या कॉमन आ रहा है उसको चेक कीजिए. तो यहाँ कॉमन दिख रहा है मुझे 3 है, x है, अंदर क्या बच रहा है? x -4. तो आप ठीक है, आप इसी तरह से मान लीजिए सपोज 3 है आपका, 3x and x -4 आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड. ठीक है, सो पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, you will write the possible dimension of the cuboid are 3 unit, 3 unit, x unit, whatever be the unit, and x -4 unit. 16 का 2 देखिए, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k. तो हियर जो कॉमन आ रहा है पहले निकाल लीजिए. तो आ रहा है, दिख रहा है हमें 4 कॉमन है, k कॉमन है. अंदर क्या बच रहा है? 3y² प्लस 2y और माइनस व्हाट इज हियर
5, 4 5 are 20 minus 5. 3 5 are 15. तो you will solve 4k and you will get मिड टर्म स्प्लिट से थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा आपका प्लस 5y माइनस 3y will give you 2y and this become 4k. कॉमन क्या आएगा 3 नॉट 3y कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 3y और प्लस 5 एंड दिस इम्प्लाइज 4k 3y प्लस 5 और दूसरा होगा y माइनस 1. तो आप इसको एक डायमेंशन ले लीजिए. सपोज दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, दिस इज हाइट. Like this, these are the common dimension, possible dimension 4k unit, comma 3y plus 5 unit, comma y minus 1 unit. So these are the possible dimension. That is it in this session. Hope you have understood. You will solve it and मेहनत करना है आपको चिल्ड्रन. ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है, कोई बात नहीं है, चैप्टर भी ऐसा ही था. आप मेहनत कीजिए आप और आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं. आपको बिल्कुल आपके फ्रेंड बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन. आपको जो भी डाउट है चिल्ड्रन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. मैं ईच एंड एवरी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी. ओके, हैव अ गुड डे.